Hello dear students, class 8 history chapter 2, chapter name establishment of company power, British company power in India or Asia. Now we'll start. The topic is mercantilism and the establishment of company power. Here, before starting, we have to just know few terms about the direction about the countries or continents. Note goods here, sorry, by mistakenly it is written over there good, but it will be goods from east, countries like China and India, such as silk and porcelain were exported to European countries. In these, silk and porcelain from China and fine cotton, spices, jewelry from India were in heavy demand in countries of West or Western country like Europe. Now here Western countries includes North America, South America, Europe, Australia, New Zealand, France, etc. As shown in the picture, Western world denoted by green color, and you can see our Asia and India Eastern world with pink color. Please note that Eastern world is comprised of nations in Asia including Middle East. Middle East, it will include Saudi Arab, Dubai, etc. All these countries, Dubai, Saudi Arab, comes under Middle East. Now, with the help of this picture, we can understand how the business was happening. Europe is denoted in the middle with light yellowish color. From there, Europe, France, Dutch Republic, Spain, Portugal, and with the help of Atlantic Ocean, the trade was being happened from Europe with the bypassing to Africa, Cape of Good Hope at the bottom, to India, and from India all the materials have been exported to European countries or Western countries. Okay, now we'll see further. Here story starts. In 1498, you can see in picture also, in 1498, a Portuguese explorer named Vasco da Gama, he discovered India with direct sea route from Europe to India. Very soon, different European companies, trading companies were formed in different European countries. To take the advantage of this rich opportunity, India was and China, these were the two major market or supplier of goods in terms of silk, porcelain, spices from India, jewelry from India. भारत और जो चाइना है, एशिया के ऐसे देश थे जहाँ से यूरोपियन अपने लिए सामान खरीद कर ले जाते थे अपने देश में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में जाके उसे हाई रेट पे सेल करते थे और उन्हें प्रॉफिट हुआ करता था। 1498 में जब वास्को डी गामा, पुर्तगाली एक्सप्लोरर खोजी, जब समुद्र के रास्ते भारत आया और उसने यहाँ आके चीज़ों को देखा, यहाँ पे जो वस्तुएं थी लाइक स्पाइसेस एटसेट्रा, वो काफ़ी सस्ती थी यूरोप के कंपैरिजन में। इनकी हाई डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो वास्को डी गामा को ऐसा लगा कि यहाँ से मैं सस्ते दामों में, सस्ते रेट में सामान खरीद कर अपने देश ले जाऊंगा, यूरोप ले जाऊंगा और वहाँ हाई रेट पे उसे सेल करूंगा तो मुझे काफ़ी प्रॉफिट होगा।
वास्को ड गामा के इस ट्रेडिंग कल्चर को दूसरी वेस्टर्न कंपनियों ने, दूसरी यूरोपियन कंपनियों ने अपनाया और अलग अलग यूरोपियन कंपनीज, डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज फॉर्म होने लगी, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। इंडिया और चाइना से सस्ते दामों पे, सस्ती कीमतों पे सामान को खरीद के ले आया जाए और अपने यूरोप में, वेस्टर्न कंट्री यूरोप में सामान को ऊंची कीमत, अधिक दामों पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे उसको सेल किया जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। इस एम से यूरोपियन कंट्रीज़ और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ हमारी इंडिया में बिजनेस के लिए आई। ओके। A small trading group was formed by the name English East India Company in 1600 Common Era in England. Now the Britishers, they formed small trading company, small trading group to trade with the eastern countries like India and China. It has been formed 1600 Common Era with the permission from Queen Elizabeth I of England. Queen granted permission them with the monopoly. Monopoly means एकाधिकार देना, किसी को सिर्फ अकेले आप ही बिजनेस करोगे. Like mono means one, only one player will be there, no competition. Monopoly we can define like the control of an industry or service by only one company. किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र पर केवल एक कंपनी का नियंत्रण होना या अधिकार होना, दैट इज नोन एज मोनोपोली. एंड दिस मोनोपोली वॉज गिवन बाय और परमिटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ England to English East India Company Group in 1600 Common Era. In exchange of profit share from English East India Company, किसके बदले में? इन एक्सचेंज ऑफ, कुछ पाने के लिए ही तो दिया होगा मोनोपोली उनको, तो कुछ शेयर इनको क्वीन एलिजाबेथ को देना पड़ता था बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ दिस मोनोपोली बाय क्वीन मीन्स दैट नो अदर इंग्लिश कंपनी कुड ट्रेड विथ द ईस्ट. इस मोनोपोली में पूरे राइट्स, पूरे अधिकार सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया ग्रुप को या कंपनी को मिले. और उसमें कहा गया था कि कोई इंग्लिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी इंडिया और चाइना में जाके ट्रेड नहीं करेगी. वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट, करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड. इंग्लिश कंपनी मीन्स रिलेटेड टू इंग्लैंड. देयर वेर अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक फ्रांस, Portugal, etc. They were different. They also came to India to take the benefit from India and China. Now, elimination or removal or no entry of competition was one of the main aim of countries that followed the policy of mercantilism. अब मर्केंटलिज्म का मतलब है, मोनोपोली से ही निकला हुआ एक शब्द है मर्केंटलिज्म. मर्केंटलिज्म अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इफ वी विल ब्रोक दिस वर्ड, देन मर्चेंट विल ऑल्सो कम. मर्चेंट मीन्स व्यापारी और ट्रेडर. सो मर्केंटलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ theory where no competition, no other party will be there. Means I am the only one person who will buy and sell good in that particular area or country. Now next,
Definition of mercantilism, also called commercialism, व्यापारीकरण करना, business set करना. Mercantilism is also called commercialism, is a system in which a country attempt to accumulate or gain more wealth through trade with other countries or colony by exporting more than it imports. मर्केंटिलिज्म का मतलब है व्यापारीकरण करना, बिजनेस करना, बिना दूसरों का फ़ायदा सोचे सिर्फ अपना भला करना, और जितना धन, जितनी वैल्यू, जितनी वेल्थ जमा कर सकें, एक्यूमुलेट कर सकें, उतना प्रॉफिट जनरेट करना. कहाँ से? अदर कंट्री से, दूसरी कंट्री से, लाइक इंडिया एंड चाइना. ऑल्सो नोन एज कॉलोनी. कॉलोनी का मतलब उपनिवेश, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है. प्लीज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलोनी, इंडिया वॉज द कॉलोनी फॉर ब्रिटिशर्स, फॉर द इंग्लिश मैन. हमारा जो भारत देश है ये कॉलोनी था, उपनिवेश था. अंग्रेज़ों ने इंडिया में बाद में अपना अधिकार जमा लिया था, कब्जा कर रखा था, अप टू 1947. आप यहाँ से समझेंगे धीरे धीरे. ये मेन कॉन्सेप्ट है कैसे शुरुआत हुई. इंग्लिश मैन, ब्रिटिशर्स, दे केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर. वो पहले व्यापारी बन के भारत देश आए थे और फिर उन्होंने पूरी सत्ता को हथिया लिया बाय हुक और क्रुक की नीति अपना के. ओके, सो फर्दर, गोइंग फर्दर, इन 1615 में, कॉमन एरा, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC obtained permission from the Mughal Emperor Jahangir to establish trading post और फैक्ट्रीज एट सूरत. 1615 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल बादशाह जहांगीर वॉज द सन ऑफ अकबर, जहांगीर से परमिशन हासिल कर ली, प्राप्त कर ली, और अपनी फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने सूरत में लगाई, सूरत में स्टैब्लिश की. सूरत जो कि अभी गुजरात में है, फेमस फॉर साड़ीज़ एंड डायमंड राइट नाउ. करंटली अभी सूरत फेमस है डायमंड्स के लिए इन इंडिया. तो इन 1615 दे गॉट परमिशन फ्रॉम Mughal Emperor Jahangir and established their first factory at Surat. Surat became the first and the chief English settlement on the western coast of India. Surat is located in Gujarat, and Gujarat is on the boundary it forms boundary with the sea coast, Arabian Sea, अरब सागर से गुजरात की सीमा, गुजरात की बॉर्डर टच करती है, और उसी रास्ते व्यापार हुआ करता था, ट्रेडिंग हुआ करती थी. गुजरात ये वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, और वेस्ट बंगाल ये ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का. हमारे भारत के हमारा जो राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये भारत के पूर्व में है, और जो गुजरात है वो भारत के पश्चिम में है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन ओवर देयर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. द कंपनी ऑल्सो बिल्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे. मद्रास राइट नाउ इट इज़ नोन एज चेन्नई, तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु, कैपिटल चेन्नई. अर्लियर इट वॉज नोन एज मद्रास. अर्लियर बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ, पहले जो बंगाल था उसमें उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल ये सभी आते थे. तो बंगाल का मतलब आज का वेस्ट बंगाल नहीं है, उस समय इसमें उड़ीसा, बिहार एंड बंगाल
All three states were included and they were known as at that time Bengal and Bombay. Now it is known as Mumbai. All these trading posts, they were located nearby the sea coast. Gradually with time, धीरे धीरे जैसे समय बीता, they fortified settlements and built around these trading posts. उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा, व्यापार बढ़ा, अपने बिजनेस को बढ़ाने के बाद उन्होंने फैक्ट्रीज को एक किले में बदल दिया. फोर्टिफाइड सेटलमेंट, किले में धीरे धीरे बदलना शुरू किया ताकि कभी उन पे कोई हमला हो जाए, अटैक हो तो वो लोग अपने बिजनेस को बचा सकें और धीरे धीरे इंडिया पे और इंडियन स्टेट्स पे, प्लेसेस पे कब्जा करना शुरू करें. इस नीयत से, इस सोच से, थॉट को माइंड में रख के उन्होंने आगे का गेम प्लान किया. दे एक्सपैंडेड टू फॉर्म प्रेसिडेंसी टाउन्स इन मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता और बंगाल. उन्होंने प्रेसिडेंसी फॉर्म की. At earlier time there were major 3 presidencies like Bengal, Madras and Bombay. Now we'll see few important terms like what is monopoly. Monopoly is the control of an industry or service by only one company. किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र पर केवल एक कंपनी का नियंत्रण होना क्या कहलाता है? मोनोपोली. मोनो मीन्स वन, एकाधिकार, किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी का अधिकार होना. मर्केंटिलिज्म, अ थियरी prevalent in Europe during the 16th to 18th century where they believe only in profit and gain of more wealth by exporting goods टू अदर कंट्रीज. एक्सपोर्ट करना, भेजना, अपने यहाँ से बाहर भेजना, दैट इज नोन एज निर्यात करना. शुद्ध हिंदी, इट इज़ नोन एज निर्यात करना. जब हम कोई प्रोडक्ट अपने यहाँ बना के दूसरी कंट्रीज़ में भेजेंगे, सेल करेंगे अदर कंट्रीज़ में ले जाके, तो हमको क्या होगा? हमको बेनिफिट होगा, हमको पैसे मिलेंगे. यस, लाइक दैट. तो मर्केंटलिज्म वॉज द थियरी which was very well known and it has been utilized at that time by European countries like Spain, France, Portugal, England etc. उनकी नीति थी कि अपने यहाँ दूसरी जगहों से सस्ता माल उठाओ और यहाँ लाके बेचो और मेजर प्रॉफिट कमाओ, या अपनी कंट्रीज़ में उसको बनाकर दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करो. नाउ अनदर टर्म अपोजिट ऑफ एक्सपोर्ट इज नोन एज इंपोर्ट. इंपोर्ट करना, आयात करना, सामान को मंगाना, कुछ चीज़ खरीदना, कोई सामान खरीदना. कहाँ से? दूसरे देशों से, फॉरेन कंट्रीज से. इंपोर्ट मीन्स टू बाय गुड्स एटसेट्रा from a foreign country and bring them into our own country. अन्य देशों से सामान खरीद कर अपने देश में लाना, उसे कहते हैं इंपोर्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, nowadays means India importing crude oil from OPEC countries. हम क्या करते हैं? हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्शन उतना नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, खाड़ी देशों से मंगाते हैं, मिडल ईस्ट से, लाइक सऊदी अरब, ईरान, यहाँ से कच्चा तेल आता है और वी आर यूजिंग दैट इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. So this was little bit in introduction how the English company has been formed, how they came to India, for what they came to India and where they
settled in India, and they formed 3 presidencies like Bengal, Bombay and Madras. These were the 3 presidency. Now we'll see the main concept of mercantilism. Sorry for this blur image, I am very sorry, please bear with me. Concept of mercantilism was an economic policy that was highly popular in Europe between 16th to 18th centuries. 16वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक यूरोपियन देशों में उन बहुत प्रचलित, बहुत ही मानी हुई ये बिजनेस थियरी थी, नीति थी, इकोनॉमिक पॉलिसी related to business, mercantilism. As per this policy, the government tried to control the economy and trade in order to make the country powerful and accumulate wealth. इस नीति के अनुसार, मर्केंटिलिज्म नीति के अनुसार गवर्नमेंट उस देश की गवर्नमेंट क्या करती थी कि इकोनॉमी पे अपना पूरा कंट्रोल करना चाहती थी, व्यापार को अपने कंट्रोल में रख के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को प्रॉफिट को कमाना चाहते थे. लाइक दिस, एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ, जमा करना, पूंजी, धन, पैसे, गोल्ड एटसेट्रा, एक्यूमुलेशन करना. टू एक्यूमुलेट वेल्थ, एक्सपोर्ट हैड टू बी इंक्रीज्ड एंड इंपोर्ट्स टू बी डिक्रीज्ड. वेल्थ कैसे बढ़ेगी? जब हम कोई सामान को अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों में उसे सेल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें पैसा मिलेगा. यस, और उस पैसे को हम क्या करेंगे? जमा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे. देयरफॉर देयर पॉलिसी वॉज, उनकी नीति क्या थी कि जितना ज़्यादा हो सके सेल करो, एक्सपोर्ट करो अदर कंट्रीज़ को, और इंपोर्ट्स को घटाओ, इंपोर्ट्स को कम करो. ठीक है, सामान को खरीदो मत, ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर अपने देश से दूसरे देशों को बेचो तो हमें पैसा मिलेगा उसके एवज में. लाइक दैट, दिस वुड अलाउ द वेल्थ ऑफ अदर कंट्रीज टू फ्लो इन एंड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द होम कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग आउट. इससे क्या होगा कि जब हम कोई वस्तु, कोई गुड्स बना के अपने देश में बना के दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ को सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा. किससे? एक्सपोर्ट करने से, सेल करने से. बट हम क्या कर रहे हैं? हम इंपोर्ट को घटा रहे हैं, हम सामान नहीं खरीद रहे हैं दूसरे देशों से. तो हमें क्या करना पड़ रहा है? पैसे तो हम खर्च नहीं कर रहे, तो मनी क्या है? बची हुई है ना, फ्लोइंग आउट तो नहीं हो पा रहा है. लाइक दैट. Thus, mercantilism promoted the exploitation of other countries for domestic gain. इस तरीके से जो मर्केंटिलिज्म की जो पॉलिसी है वो क्या करती है? दूसरे देशों का इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना, उसका दोहन करना. जैसे हम कोई वस्तु का यूज़ करें उसे हम एक्सप्लॉइटेशन भी कहते हैं. दैट इज़ नॉन इथिकल, ये इथिकल नहीं होता. एक्सप्लॉइटेशन की किसी का फ़ायदा उठाना, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइटेशन. तो ये उनकी पॉलिसी थी कि सामान बाहर देशों में एक्सपोर्ट करो और वहाँ से कुछ मत खरीदो, तो क्या होगा कि वहाँ का पैसा हमारी कंट्री में आएगा. मर्केंटिलिज्म बिलीव्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज. The colonies, like for example India, were meant to supply raw material and act as market for goods make in the colonizing country. For example Britain, colonizing country मतलब वो कंट्री जिन्होंने अपनी कॉलोनी को बनाया है, कब्जे में लिया है. किसको? कॉलोनीज. लाइक इंडिया. वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी थी? वो भारत से, इंडिया से सस्ते रॉ मटेरियल, कच्चे माल को अपने देशों में ले जाते थे, वहाँ इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोडक्शन करते थे, बनाते थे, और जो रेडी
जो फाइनल प्रोडक्ट, वो जो फाइनल सामान हुआ करता था उसको इंडिया में ही ला के बेचते थे। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया को इन्होंने धीरे धीरे गरीब करना शुरू कर दिया, और यहाँ इंडिया का जो धन था, पैसा था, गोल्ड था, वो अपने देश में ले गए। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेटेड ऑन दिस प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड में काम किया। एंड दस शॉट टू टेक एज मच ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज एंड वेल्थ एज पॉसिबल विदाउट गिविंग एनीथिंग बैक। मीन्स कि उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि यहाँ से सामान को खरीदा सस्ते दामों पे और अपने यहाँ पे ले जाके मैन्युफैक्चर किया, और उस बने हुए फाइनल प्रोडक्ट को इंडिया में ला के ही सेल कर दिया, बिना कोई मदद दिए, बिना कोई फैक्ट्री लगाए। अगर वो इंडिया में फैक्ट्री लगाते तो इंडिया के लोगों को रोज़गार मिलता, जॉब्स मिलती, एम्प्लॉयमेंट होता, गरीबी दूर होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इंडिया को धीरे धीरे गरीब बनाने का काम किया, और इसी के कारण इंडिया पे उन्होंने राज किया। आगे चल के वी विल डिस्कस इन दैट। टू बी एबल टू डू दिस इफेक्टिवली they also had to eliminate competition from other European countries. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे यूरोपियन देशों से भी खतरा था। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच, दोज वेयर फ्रॉम फ्रांस, पुर्तगीज, फ्यू कंपनीज फ्रॉम स्पेन, ये इन अलग यूरोपियन देशों से भी लोग इंडिया में धीरे धीरे आने लगे थे। और वो क्या सोच रहे थे कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जाके इंडिया में अपना व्यापार कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, बिजनेस कर रही है, उसी तरीके से हम भी जाके इंडिया से प्रॉफिट कमाएंगे, प्रोडक्ट को लेंगे और अपने देश में लाके उसे ज़्यादा हायर कीमतों पे बेचेंगे या इंडिया में ही अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे। बट आगे चल के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेड वॉर हुए, व्यापार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गईं, दैट इज़ नोन एज ट्रेड वॉर। उसे हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ दे डिड सो, हाउ दे established English East India Company in our India, and concept of mercantilism. Thank you students, thank you for your valuable time.